Good morning and welcome to your own channel Adu Bharat here. Today I am here with a new video for class 10th employability skill. This is the chapter of the information technology. This is the two part. First is the employability skill and second is B part, that is the subject specification. The first is the employability skill. The first chapter is communication skill 2. Now the questions: in our day-to-day life, we share ideas, experiences, knowledge and feeling with people around us. And to do this, we need to interact and communicate with them. So proper and effective communication is the most important aspect and perhaps is the most important of all life skill. So the question arises, what is communication exact? So communication word that has been derived from the Latin word communicare, which means to share. So communication help to understand people better, removing misunderstanding and creating clarity of thought and expression. So we can just say that whenever we share our thought and ideas with another person or more than one person, this is called a communication. This is a simple way. So according to definition, we can say communication is the fundamental process of exchanging information, ideas, thought and feeling between individuals. Being a social animal, all we need to communicate with the people, another people, either speech, signals, writing or even behavior, okay, for better understanding within the people. So further we continue communication cycle. How can we communicate? Then first, if you send any message to any medium, okay, so this will be transferred to the message. You write the message, you speak something, or you can give written text, so that will be received by the receiver. So that will be decode what he or she understand. Okay, so message converting it back into understandable thought and idea. So the next is feedback. Now the barrier is also there. Why? Psychological barrier. Okay, so noise. Okay, so maybe due to this noise, these barriers, what the receiver person understand may be improper. Okay, so feedback is two-way. Receiver as well as sender can do this. Now the question types of communication. जब हम communication की बात कर रहे हैं तो कितने types के communication? Normally there are 3 types of communication: verbal communication, second non-verbal, and third is the visual communication. Now question is, what is verbal communication? Verbal communication means oral. जब आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में आपका आता है जिसमें हम इसके अनदर नेम बोल सकते हैं, लाइक स्पीच, स्पीकिंग, टॉकिंग, और यू कैन से कम्युनिकेशन, डायलॉग, टॉक, कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन. देयर आर सो मैनी वर्ड वी कैन यूज़ फॉर द वर्बल कम्युनिकेशन. ओरल में आप फेस टू फेस करते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, या पब्लिक में स्पीक कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज़ ओरल आपका. इवन आपका जब ओरल टेस्ट होता है, दिस इज़ ऑल्सो. द नेक्स्ट इज़ द रिटर्न. रिटर्न में आप लेटर, ठीक है, लेटर जो आप भेजते थे पुराने ज़माने में, और अभी हम ईमेल से, दैट इज़ द फास्ट रिप्लाई. रिपोर्ट्स यू कैन मेक एंड इवन यू राइट योर टेक्स्ट. आपने जो शीट लिखते हो, आप आंसर शीट लिखते हो, ठीक है. दिस इज ऑल्सो द रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर एग्जामिनर. तो इसी वजह से जब एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ाती है तो सबके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं. वाई? बिकॉज द कम्युनिकेशन में आपका जो टीचर और आपका जो कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है, उसके बेस पे जब आप रिटन एग्ज़ाम या ओरल टेस्ट देते हैं ना, यू विल गेट द मार्क्स. सेम बुक, सेम क्लास, सेम टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वन टीचर, ठीक है, वन टीचर टीच 40-30 स्टूडेंट्स. सेम बुक से आप पढ़ते हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सेम टाइप पढ़ते हैं. व्हेन यू गिव द एग्ज़ाम, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, योर रिजल्ट विल बी डिफर, ठीक है. सो दिस इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट इज़ द इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन में आपको बताया, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसमें कि टीचर डिस्कसिंग
the performance of a students, teacher teaching in a class, two friends discussing homework, or maybe professional talking, and even you are talking to someone in using your phone. ठीक है, that will be in a small group or maybe in public communication. And writing, I have given the example. The best example is your answer sheet. Okay, the next is the non-verbal communication, body language. ठीक है, किस तरह का आपका posture, gesture and overall physical appearance while you are talking to someone. ठीक है, सो दिस इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. और आप इस तरह से कह सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, वेन एवर योर टीचर कम इन क्लास, ठीक है, एंड द वे टीचर कमिंग इन योर क्लास, यू जस्ट सिट क्वाइटली, और मे बी you are busy doing something, or maybe you open your notebook when teacher come. ठीक है, so there are different important aspects of the non-verbal communication. ठीक है, like your emotions, your thought, your facial expression, your vocal tone and posture. These are the part. So for example, whenever you want to look how, what happened, so your gesture will be change. So आपकी जो day by day communication होती है, जिसमें 55% communication as per survey using your body movement like face, arm. whenever teaching आप अपने फिंगर से एक्सप्रेस करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं समटाइम्स. दिस इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. 38% कम्युनिकेशन आपकी होती है वॉइस टोन. ठीक है, और वेन एवर यू टेक पॉज, कोई का आपका जब आप बात करते हैं किसी से, तो आपका जो पिच होता है, वॉल्यूम होता है, कई बार आपका हाई हो जाता है, कई बार बहुत लो होता है. आपने देखा होगा कई लोग बहुत लो टोन में बात करते हैं, कई लोगों की टोन बहुत हाई होती है, कई बहुत फास्ट बोलते हैं, कई बहुत ही स्लो बोलते हैं. ठीक है, सो दिस all comes in the non-verbal communication part. Only 7% जो communication is done using word. ठीक है, that means 93% जो आपकी communication है वो non-verbal होती है. ठीक है, जिसमें आप यूज़ करते हैं gesture, facial expression, your posture, your space and touch. ठीक है, when mother बिना बोले, या child जब बच्चे को हक करता है बिना बोले, मदर और बच्चे में एक साइलेंस कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, या आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं और शेक हैंड करते हैं. ठीक है, बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो भी आपका जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, या आप किसी को डांटते हैं, स्कॉल्डिंग करते हैं, तो दिस इज़ योर जेस्चर जो है, अपीलिंग जो होती है वो आपकी करती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, सो जो आपके मैटर करती है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ वॉइस. लास्ट आपका होता है द थर्ड वन इज़ द विजुअल कम्युनिकेशन लाइक इमेज. आपको कोई फोटोग्राफ दिखाई, ठीक है, आप समझ जाएंगे दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ माई मदर, फादर. ठीक है, किसी के इसमें. नेक्स्ट आपका होता है सिम्बल्स एंड साइन. ठीक है, साइन लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, कोई लोगो, कोई आइकन. आपका ऑडी का डायग्राम आपको पता ही है, ओलंपिक का साइन देख के आप बता सकते हैं, दिस इज़ द साइन लैंग्वेज. दूसरा, ट्रैफिक में आपका लाइट होता है, आपका सिग्नल होता है, पार्किंग की है यहाँ पे. ठीक है, या कहीं लिखा होता है, आप नॉर्मली हम यूज़ करते हैं रेस्ट रूम, तो उसका साइन देख के पता चल जाता है. तो दीज आर द सिंबल वी यूज़ फॉर द कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑलवेज पिक्चर मोर इम्पैक्ट देन टेक्स्ट. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ द डाटा विजुअलाइजेशन, दैट इज़ द चार्ट. जब हम चार्ट बनाते हैं, डाटा करते हैं, तो डाटा रिप्रेजेंटेशन का द बेस्ट वे आपका होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वे इज़ द चार्ट. आपने छोटी क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा, ग्राफ आपने पढ़ा है. ठीक है, ग्राफ से या चार्ट आप सिंपल देखिए कि अगर आपको मैपिंग में भी आप देखते हैं या चार्ट में, मैंने आपको बताया कि आपके क्लास वाइज रिजल्ट है आपका. ठीक है, रेदर देन पूरी शीट पढ़ने की बजाय किस सब्जेक्ट में कितने टॉपर हैं या किस सब्जेक्ट का रिजल्ट हाईएस्ट रहा है, अकॉर्डिंग टू चार्ट वी कैन ईजिली विजुअलाइज. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन, और वी कैन से द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वी यूज़. नेक्स्ट आपका आता है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, व्हाट आर द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में आपके आते हैं इंटरपर्सनल. दैट मीन्स सेल्फ रिफ्लेक्शन, जब हम खुद से अपना करते हैं बात. ठीक है, दैट इज़ आप अपने आप में विचार आ रहे हैं कि आइदर सपोज आपको पिकनिक में जाना है, स्कूल की तरफ से पिकनिक जा रही है, एंड आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, उनसे परमिशन लिए, दे आर डिनाइंग कि नहीं अभी नहीं जाना, वॉट एवर रीज़न. सो देन जो थॉट आपके इसमें आ रहे हैं कि आप कैसे उनको कन्वेंस करें कि वो आपको जाने दें, देन यू आर जस्ट मेकिंग प्लान. सो दिस इज़ कॉल्ड द इंटरपर्सनल. नेक्स्ट, और आपने देखा होगा इवन शेक्सपियर के ड्रामा में वो खुद ही
डायलॉग आपका मोनो डायलॉग जिसे कहते हैं, खुद ही बोल रहे होते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरपर्सनल। नेक्स्ट आपका आता है उसमें इंट्रापर्सनल है ये। इंटरपर्सनल में आपका आता है जब आप दो लोगों से बात करते हैं। फिर से देखिए, इंट्रापर्सनल मीन्स आपका इंटरनल डायलॉग में, ठीक है, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन हम खुद के लिए कर रहे हैं। इंटरपर्सनल मीन्स आप 1-to-1 कन्वर्सेशन, आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है, 1-to-1 ध्यान रखिएगा। स्मॉल ग्रुप मतलब 3 to 15 पीपल आर कमिंग। और पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब आप स्पीच दे रहे हैं असेंबली में, यू आर एड्रेसिंग टू मोर देन स्मॉल ग्रुप पीपल। दैट मीन्स 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। जो आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, या नेता होते हैं, वो क्या करते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, हमें वोट दो, तो वो क्या करते हैं, पूरे ग्रुप में करते हैं वो, ठीक है, दैट इज़ लार्ज क्राउड में अपनी बात को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जिसे मैंने सबसे पहले बताया साइकोलॉजिकली, इमोशनल स्टेट्स, ठीक है, एजम्पशन कैन डिस्टॉर्ट मैसेज। आपका साइकोलॉजिकल होता है, कोई लोग बहुत अधिक बोलते हैं, कोई नहीं बोल पाते हैं। फिजिकल आपका होता है लाइक नॉइज़ आ रहा है, पुअर लाइटनिंग है, फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपकी वॉइस क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, तो आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो हो ही सकती है, ठीक है, दो डिफरेंट पीपल अगर लैंग्वेज के पीपल बैठेंगे तो कम्युनिकेशन आपका प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो कल्चरल, ऑब्वियसली कल्चरल जो आपका होता है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर्स है कम्युनिकेशन में, ठीक है। डिफरेंट कल्चर के पीपल्स का अलग हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल फॉर्म अलग हो जाएंगे, नॉर्म्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर दी कॉमन बैरियर्स वी आर यूजिंग। नाउ हाउ कैन वी यूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? देयर आर 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट as examination point of view. That is, first is the completeness, provide all necessary information for clear understanding, ठीक है। आपको जब किसी को कम्युनिकेट करना है किसी से, तो पहला आप में होना चाहिए कंप्लीटनेस, ठीक है, एज आई हैव गिवन एक्टिविटी इन द क्लास, ठीक है, कि अगर आपका इंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट होगी तो अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा और आउटपुट भी आपका सबका अलग आएगा, ठीक है। द नेक्स्ट आपका है, एंड द नेक्स्ट आपके 7 C's में कंसिस्टेंस, एंड थर्ड इज कंसिडरेशन, नेक्स्ट क्लैरिटी, ठीक है, कॉन्क्रीटनेस एंड कर्टसी, सो एंड करेक्टनेस इज द लास्ट। सो देर आर द 7 इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी विल डिटेल in the next video. And the next point is tools for effective communication, that is also clear concise language, active of know your audience, edit and preferred। आपकी ऑडियंस है आपकी जूनियर क्लास की और आप बातें कर रहे हैं सीनियर क्लास की, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर, ठीक है। सो स्ट्रेटेजी हम क्या फॉलो करते हैं इनहेंस कम्युनिकेशन? फर्स्ट आपका होता है ऑडियंस सेंट्रिक, दिस विल बी ऑडियंस, जो हम कम्युनिकेट करेंगे जो ऑडियंस को समझ में आए। इसीलिए कोई जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका स्पीच बहुत अच्छी होती है, लोग सुनते हैं, और किसी के में बिल्कुल भी नहीं सुनते, बिकॉज ऑफ द जो भी ऑडियंस सेंट्रिक होगा, या स्टेज शो जो देते हैं वो भी ऑडियंस सेंट्रिक होता है। एंड सेकेंड होता है कीप इट सिंपल, आप बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड अगर यूज़ करेंगे नो वन विल टेक द इंटरेस्टेड। नेक्स्ट आपका होता है इमोशनल इंटेलिजेंट, मैनेज योर ओन इमोशंस, ठीक है, एंड स्टे रिस्पेक्टफुल इवन इन चैलेंजिंग डिस्कशन। अगर कोई बहुत हॉट डिस्कशन हो रही है तो भी आप उसमें करेंगे तो वो आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वे एंड द की टेक अवे, दिस आर द स्टिक की अवे, दैट इज कम्युनिकेशन इज डायनामिक मल्टी लेवल प्रोसेस। नेक्स्ट इज बैरियर विथ क्लैरिटी एंड एम्पैथी, 7 C's and the effective communication, ठीक है।